یا شاہ سوہی بچانا مارا موکھا ماہ تھے کا شاہ جو سا ہے تجھا بھاوے. خدا حضر امام نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاک مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شوگر لینڈ کی وائز میں جہاں سے شروعات کی تھی وہیں سے تھوڑی شروعات کروں. میں اکثر اپنی وائزوں کے اندر قرآن کے اندر سے، فرمان مبارک کے اندر سے، گنان کے اندر سے، حدیثوں کے اندر سے اہم اہم مدعے نکال کے اور آپ گج جماعت کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مولا کی مرضی سے میرے کچھ پرسنل کام کی وجہ سے میں تھوڑے دن اور رک گیا، 4-5 دن، اور طریقہ بورڈ کو پتہ چلا تو مجھے کہا کہ بھائی 2-3 وائس اور آپ دے کے جاؤ. تو وائس کے اس تیسرے راؤنڈ کے اندر بھی فرمان کے اندر سے، گنان کے اندر سے کچھ اہم مدعے میں نے نکالے اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. شروعات کرتا ہوں فرمان مبارک سے، مولانا حاضر امام کا فرمان اور مولانا سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان. مولانا حاضر امام فرماتے ہیں، بمبئی کا فرمان ہے، اسمبلی کا فرمان ہے، الوائز اور REC کے ٹیچرز اور طریقہ بورڈ کے تمام ممبران اور کچھ خاص انوائٹیز لوگ، اس کے بیچ میں حاضر امام فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے روحانی بچے ہمارے طریقے کی کتنی اہم امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بے خبر ہے. ہمارے طریقے کی کتنی اہم امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بے خبر ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. تم ہمارے اسماعیلی طریقے کے بارے میں اچھی سمجھ اور تعلیم دو، کیونکہ ہماری جماعت، ہمارا مذہب طریقہ صرف پالے ادا کرے اتنا ہی انف نہیں ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے طریقے کو اچھی طرح ٹھیک طرح سمجھے بھی. خناودان خناودان. مولانا سرکار سلطان محمد شاہ کا فرمان، حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں فرمان کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں فرمان کرتے ہیں. تم جب ہماری بیعت میں آتے ہو، بیعت کرتے ہو، تب اس نیت سے آتے ہو کہ کسی بھی وقت حاضر امام کے فرمان کے باہر تم نہیں جاؤ گے. میری بیعت میں آنے کے بعد دل میں سستی اور کمزوری مت رکھنا. جس طرح بزنس کے اندر ایگریمنٹ کرنے میں آتا ہے، قرار کرنے میں آتا ہے، اس طرح تم ہمارے پاس اس ایگریمنٹ سے، قرار سے آتے ہو کہ ہم اب کسی کے فریب میں، دھوکے میں نہیں آئیں گے. ایسی نیت کے ساتھ بیعت کرو گے
تو تم کو بہت ہی فائدہ ہوگا. تمہارا اعتقاد ایمان ہمارے اوپر مضبوط اور پکا رکھو. تمہارا ایمان برابر نہ ہو اور ہمارے لیے دل میں شک رکھو اور تمہارا ایمان ہمارے اوپر تھوڑا ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ ایک زاڑ درخت کے مثال ہوا، یعنی درخت کے پنے پتے دونوں طرف اڑتے رہتے ہیں. خدا نہ کرے تمہارا ایمان جاڑ کے پتے کے جیسا ہو جائے. ہم چاہتے ہیں تمہارا ایمان پہاڑ کے جیسا وزندار رکھو کہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ہمیشہ ایک رنگ رکھو، لیکن بار بار رنگ بدلنا وہ اچھا نہیں ہے. جب تم ہماری بیعت میں آ کے ہمیں وفاداری کا وچن دیتے ہو تو ہم بھی تم کو وچن دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کا ہاتھ آخرت کے اندر پکڑیں گے. ایمان میں خرابی مت لاؤ، ایمان کے اندر خرابی مت لاؤ. دل میں زخم، یعنی انگلش میں ہم وونڈ کہتے ہیں، دل میں زخم ہو گیا ہو تو اس کی دوا نہیں کرو گے تو زخم دل کو آہستہ آہستہ کھا جائے گا، جس سے تم کو بہت نقصان ہوگا. تم ابھی نہیں سمجھتے ہو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تب تمہیں سچے فائدے کی قیمت سمجھ پڑے گی. جو ظواہرات کو نہیں پہچانتا ہے وہ جب مرے گا تب اسے سمجھ پڑے گی. دیکھو ہمارے فرمانوں کے اوپر برابر خیال کرو، یہ ہماری خواہش ہے. خانہ ودان خانہ ودان. ایک اور فرمان جو میں نے پرسوں دیا تھا شوگر لین کے اندر، مولا فرماتے ہیں، جنگبار کا فرمان ہے 1905 کا، تمو دین اسماعیلی માં આવ્યા તેથી અમે તમારા સર મુખ્તિયાર છીએ. تم ہمارے دین اسماعیلی کے اندر آئے تو ہم تمہارے ہیڈ ہو گئے، تمہارے سر مختار ہو گئے. હવે તમને ગટારત છે કે દિલો જાનથી અમારા હુકમ પ્રમાણે અને અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલો. کہ اب تم کو لازمی ہے، جب تم آ گئے ہیں، میرے مرید بن گئے ہیں، تو میری خواہش اور میرے حکم کے مطابق چلو. تمہارے من کی اچھا کے مطابق کبھی نہیں چلو. ویری امپورٹنٹ سینٹینس. حاضر امام جو یہ بتائے اسمبلی میں کہ وقتاً فوقتاً میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت ہمارے طریقے کی کچھ باتیں نہیں جانتی ہے، نہیں سمجھتی ہے. کیوں حاضر امام نے فرمایا؟ سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے من کی وش کے مطابق، خواہش کے مطابق کبھی نہیں چلنا. اگر تمہیں ہماری بیعت میں آنے کے بعد اگر تمہاری خواہش کے مطابق چلنا ہے تو مولا کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ پھر پیری مریدے کا رشتے کا مقصد کیا؟ ہم نے اس کو ہمارے مرشد طریقے قبول کیا، ہمارے پیر طریقے قبول کیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس رشتے کا پھر مقصد کیا؟ خانہ ودان خانہ ودان خانہ ودان. صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمدین و آل محمد. یہ بات میں سب جگہ بتانا چاہتا ہوں. میری یہ خواہش تھی کہ اگلے برس آؤں تب میں ان چیزوں کو لوں، لیکن شاید مولا کی خواہش ہے کہ میں ابھی لوں، اور میرا جانے کا 4-5 دن ڈیلے ہو گیا کچھ وجہ سے. مولانا حاضر امام 1988 کی نیشنل طریقہ بورڈ کی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر 88 میں مولانا حاضر امام نے بہت ہدایتیں دی.
दुनिया भर के तरीका बोर्ड के चेयरमैनों को बहुत फरामीन किए और हाजिर इमाम ने अपने कुछ ख्यालात शेयर किए। उन ख्यालातों में एक ख्याल हाजिर इमाम ने वहां पर इजहार किया और नेशनल चेयरमैनों के साथ शेयर किया और चेयरमैन आके हमारे साथ शेयर किए, एकेडमिक स्टाफ के साथ, सीनियर जूनियर अलवाइज आरईसी के टीचर मुखी कामड़िया सबकी मीटिंग बुलाई थी और हाजिर इमाम के ख्यालात रखते गए कि देखो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें हाजिर इमाम ने जाहिर की है। उसमें एक बात जो इतनी अहम है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि उसके बगैर अगर कोई रूहानी बच्चा दुआ पढ़ता है, इबादत करता है, दसौन देता है, खिदमत करता है तो उसकी कोई चीज कबूल नहीं होती। और वो चीज बैयत। हाजिर इमाम फरमाते हैं, जिसका एसेंस सारांश मैं आपके सामने रखता हूं, कि मौला ने फरमाया कि मुझे ऐसा लगता है, 67 का फरमान आपके सामने पड़ा कि वक्त जमातों मुलाकात दरमियान अमने वो लागे से। नाउ 88 हाजिर इमाम फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूहानी बच्चे अभी भी बैयत के कॉन्सेप्ट को, बैयत के सिद्धांत को, बैयत के एसेंस को मुझे लगता है सही तरीके से समझ नहीं पाए। इंडिविजुअली में मेरी बात करूं तो उस वक्त मुझे मेरे दिल में तो ऐसा झटका लगा कि या मौला ये आपने क्या बताया कि एक शख्स एक सेठ के पास जॉब के ऊपर रेवे, नौकरी के ऊपर रेवे और सेठ इसको अपने पास रखे कि भाई अच्छा आदमी है, मेरे ख्यालात को समझने वाला है, और 15-20 साल के बाद वो सेठ बोले कि यार जो मकसद से तेरे को रखा था वो मकसद तो दिखता नहीं है। हाजिर इमाम फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझे हैं। तो ये एक सेंटेंस और 67 का फरमान के हम वक्तन फवक्तन देखते हैं कि हमारी चीज, हमारे तरीके की अहम चीजों के बारे में शायद मेरे रूहानी बच्चे नहीं जानते हैं। दिनदारों, उसके बाद हमने छानबीन करना शुरू किया, हमने लेक्चर बनाए, इंडिया की मैं बात करता हूं, वाइज़ें बनाई बैयत के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और तकरीबन पूरे इंडिया के अंदर उस वक्त लाइव वाइज देने में आई, या जहां लाइव मिशनरी नहीं गए तो हमने मॉड्यूल भेजे थे, कैसेट भेजी थी कि हाजिर इमाम का ये दुख समझने की कोशिश करो। और इंडिविजुअली मैंने सोचना शुरू किया, मैंने भी बनाए, मैंने भी अपना पेपर बना के दिया, यानी सबका पेपर मिक्स करके एक अच्छी वाइज बनाने में आए। मैंने इंडिविजुअली सोचना शुरू किया, क्योंकि हम अलवाइज कुछ 4-5-8 सीनियर अलवाइज हैं, वो बरसों से जमातों के अंदर घूमते हैं, दुनिया भर के अंदर फरमान गिनान की स्टडी करते हैं। तो हमारे सामने कुछ चीजें दिखने लगी कि मौला का ये दुख कितना बराबर है, मौला का ये दुख कितना बराबर है। और मौला जैसे हम महसूस करते हैं ऐसे हाजिर इमाम भी, मैंने कहा कि नूरानी तौर की मैं बात नहीं करता हूं, नूरानी तौर पे वो हर चीज जानता है, लेकिन जाहिरी तौर पे भी जब इंटरनेशनल मीटिंगें होती है, हमारे लीडरों के साथ मिलते हैं, हाजिर इमाम के पास छोटी छोटी चीजें हर एक जमात की रखने में आती है। तो चलो हम चेक करें बैयत का कॉन्सेप्ट, और सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान सामने रखो, मेरी बैयत में आने के बाद तुम्हारी इच्छा नहीं रहती है, તમારી મરજી નથી થતી, મારી मर्जी बनी जाए छे, मेरी विश के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाओ। स्लेव नहीं बनाया है, हमको गुलाम नहीं बनाया है। लेकिन एक फरमान मैंने दिया, बाद में मैं पढ़ूंगा शुगरलैंड के अंदर, कि इमाम तरीके
ખુદા તરફથી કહેવાની અમને ફરજ છે, એટલે અમે તમને ફરમાવીએ છીએ. અમે નથી કહેતા કે અમને માનો યા ન માનો. માનવું હોય તો માનો, ન માનવું હોય તો ન માનો, પણ ખુદા તરફથી અમને કહેવાની ફરજ છે, એટલે અમે તમને ફરમાવીએ છીએ. अब मुझे बताओ, हमारी जिंदगी इमाम की विश के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक चलती है? कुछ चीजें रखूं, टेक इट इजी विथ ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट. खुले दिल और दिमाग से सुनो और समझने की कोशिश करो, और घर पे जाके मनन करो इसके ऊपर कि हमारी लाइफ एज अ इस्माइली, एज अ बैयत का कौल इमाम की इच्छा और विश के मुताबिक चलती है. जमात खाना, आज तो हम अपनी मर्जी से जमात खाने आते हैं. टेक इट इजी, लेकिन समझने की कोशिश करो. आज तो थक गए हैं, जरा कल जाएंगे अपन. ये सेंटेंस सुने हुए हैं जो मैं बोल रहा हूं. अरे यार, रोज कुछ थोड़ी जमात खाना होवे, रोज कहीं थोड़ी होए. चांद रात शुक्रवार ઓકેશનલી જઈએ છે. आज तो फलाना बहुत काम है, जरा शाहरुख खान को मिलने को जाना है. बेचारा जमात खाना तो रोज है, वो तो एक बरस में एक टाइम आता है. टेक इट इजी. मैं भी जाने वाला था लेकिन टिकट नहीं मिली. लेकिन आफ्टर जमात खाना भले एक दो सीन चले जावे, निर्दोष मनोरंजन करवानी छूट છે. लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि हमें सिनेमा જોવાની મના નથી કરતા. ઘણા જણા સમજે છે કે અમે સિનેમાની વિરુદ્ધમાં છીએ. અમે સિનેમાની વિરુદ્ધમાં નથી, પણ જમાત ખાનાની કુરબાની આપીને સિનેमा જોવા નહીં જરૂર. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आज हम जमात खाने भी थोड़ा अपनी मर्जी से आते हैं. अरे यार, आज तो सैटरडे, आज संडे है, थोड़ा आराम. लाचारी है, मजबूरी है, ऑल राइट, बच्चे लोग की एग्जाम है. लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बने तब तक इस दर पे आने की कोशिश करो और शुक्राने का सिजदा अदा करो, शाम को या सुबह को. लगभग तो दोनों टाइम, लेकिन एक टाइम तो अब बने तब तक इस दर पे आओ. और कोई मजबूरी से ना आ सके तो अपनी दुआ बंदगी को अदा कर लो, क्योंकि नहीं तो जख्म पड़ जाएगा. इमाम ने फरमाया वुंड पड़ जाएगा, और वो वुंड अगर ये जमात खाने को बराबर नहीं रखे, दुआ बंदगी को बराबर नहीं रखे, तो वो जख्म बढ़ता जाएगा और सड़ा बढ़ जाएगा. तो मौला को कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान हमको है. मौला ने फरमाया कि आखिरत में खबर पड़से. चलो आगे चलते जाए थोड़ा. मैंने एक बात बताई शुगरलैंड के अंदर के मौलाना हाजिर इमाम को जब ये पता चला कि कुछ मेरे रूहानी बच्चे खिदमत के लिए ना कहते हैं, खिदमत के लिए, सेवा के लिए, गत की और हाजिर इमाम की सेवा के लिए ना कहते हैं, तो मौला ने पूछा कि क्या वो लोग 5-12 साल लाइफ के अंदर नहीं है? वो लोग खिदमत की मजलिसों के अंदर नहीं है? क्या उनको कुछ लाचारी मजबूरी है? तो कहने में आया कि नहीं, हम लोग फाइंड आउट किए, उनको कोई लाचारी मजबूरी नहीं है. लेकिन वो कहते हैं कि हमको ये जवाबदारी नहीं उठानी है, हम ऐसे खिदमत करते हैं, अच्छा है. तब मौला ने कहा कि 5 साल में नहीं है, लाइफ में नहीं है. अभी मुझे बताओ कि हाजिर इमाम ने 88 में फरमाया कि बैयत का कॉन्सेप्ट नहीं समझे है. अगर बैयत के कॉन्सेप्ट को समझे तो एक हाजिर इमाम का रूहानी बच्चा उसके मुंह के अंदर से ना निकले जो खिदमत की मजलिसों के अंदर ये पाठ हमेशा सुनता है कि माँ बाप हमने जन्म्या અને સોંપ્યા તમારી શરણ. यानी सुल्तान मूसा ने कहा ना कि हमें જોઈએ છે कि ઘણી ચીજો તમે મિકેનિકલી કરો છો, यंत्रवत. फिर चलो आगे, हाजिर इमाम के पास ये भी रखने में आता है
खुदाविन कितने लोग डिमांड करते हैं कि फलानी खिदमत देंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं नम्रता के साथ हाथ जोड़ के गत जमात से कहता हूं, जो नहीं आए हैं तो उनको ये मैसेज देना कि हाजिर इमाम के घर की किसी भी किस्म की खिदमत सेवा करने के लिए कंडीशन मत रखना, डिमांड नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी खिदमत कबूल नहीं होगी, नहीं तो तुम्हारी खिदमत कबूल नहीं होगी। लेकिन खिदमत के अंदर एक ही चीज ध्यान में रखो कि हम कुछ नाही तमे छो सर्वे, सेवा तमारी हम लियणा। आशा जी अमे कुछ नाही तमे छो सर्वे, नहीं कुछ होसो तो सर्वे कुछ थासो, एवा सर्वे कुछ मारा शाह जी ने भावे। ठीक है, तो एक ये चीज के हम बंधे हुए हैं, हमारी विश नहीं है, हमारी विश खुदावंद शाह करीम हाजिर इमाम की विश है, हमारी इच्छा खुदावंद शाह करीम हाजिर इमाम की इच्छा, ये ध्यान में रखो। इससे मैं आगे डिटेल में नहीं कहता हूं। आप एजुकेटेड हैं, आप समझदार हैं, लेकिन जब भी तुमको खिदमत के लिए बुलाने में आए, ऑफर करने में आए और आपको मजबूरी नहीं है, लब्बैक आमीन कह के सर को झुका दो कि मैं रेडी हूं। आप जहां भी, आप जमात भाई बनाओ, आप कहां भी बिठाओ, हमको कुछ भी खिदमत दो, हम तैयार है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये घर क्या है, ये घराना क्या है। चलो आगे। तुम्हारी मर्जी नहीं। और इतना बड़ा जो बैयत का फरमान मैंने पढ़ा सुल्तान मोहम्मद शाह का, जख्म वगैरह का, दीनदारों, मैंने 2001 के अंदर यहाँ इस जमात खाने के अंदर बताया था कि ऐ दीनदारों, एक बात ध्यान में रखो, ये दुनिया है, ये दुनिया है, और ये दुनिया ऐसी है जिसके लिए सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान अपने पास रखो, और चाहे तो उसको तुम इंग्लिश या उर्दू में बना के अपने घर के अंदर रखो। मैंने ये फरमान सुल्तान मोहम्मद शाह की आवाज के अंदर टेप के ऊपर सुना 1981 में वारिस जाफर अली सुलेमान मेघजी के घर पे नैरोबी के अंदर। ये फरमान सुल्तान मोहम्मद शाह की आवाज में, और वारिस साहब को सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये फरमान रिकॉर्ड करके दिया था। देखो, मैं आस्था से पढ़ता हूं, कितना अच्छा फरमान है, कितना दिल को सुकून देने वाला फरमान है। लेकिन दुआ की कमजोरी, दसों की कमजोरी, इबादत की कमजोरी, और वो कमजोरी की वजह से जख्म पड़ते गए और हम डामाडोल होते गए। मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह, रात दिवस मारा विचारो तमारी साथे छे, जो के आ दुनियाમાં દુઃખ અને ગમ ક્યારે પણ અંત પામતા જ નથી। દરેક જણને દુઃખ અને ગમનો પ્રામાણિક હિસ્સો ભોગવવો જ પડશે। દરેક જણને, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ, દુઃખ અને ગમનો પ્રામાણિક હિસ્સો તમને ભોગવવો જ પડશે। છતાં મારી દુઆ છે કે તમને ઓછો બોજો પડે। તમારા રૂહાની પિતા પ્રત્યેની મોહબ્બત અને ઇમામ તરફની વફાદારીને કારણે તમે સગળા સુખ મેળવો। વળી અમે દુઆ કરીએ છીએ અને અમારા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ કે બીજી દુનિયામાં ખુદાવંદી શાંતિ હંમેશા તમારી સાથે હોય। બીજી દુનિયામાં તમે હંમેશા રાત દિવસ प्रत्येक घड़ीए इमामना हकीकी दीदार साथे हो। तमे अमर शांति अने सुख मेळवो के जे मात्र पेली दुनिया ज आपी शके छे। अहीं माटे याने आ दुनिया माटे हमेशा याद राखजो
કે સગળા ઉત્તમ દ્વા આશીષો છતાં આ દુનિયા ઉપરથી દુઃખ અને ગમ નાબૂદ થઈ શક્યા નથી. ફરી એકવાર બંને જહાન માટે અમે અમારા દ્વા આશીષો અને પ્યાર ભરેલા વિચારો મોકલીએ છીએ અને તમારી સુખ અને શાંતિ માટે દરેક દુઆઓ મોકલીએ છીએ. ખાનાવદાન खानावदान खानावदान सलवात पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद. जब दुख आते हैं, जब मुश्किलें आती है, जब तकलीफें आती है, तो बजाय अपना इंटेलेक्ट यूज करने के, अपना अकल का इस्तेमाल करने के बजाय, या तो फरमान गिनान के अंदर ढूंढने के बजाय वो दूसरे और तीसरे रास्ते पकड़ के और अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते. जो दुख, जो बीमारियां, जो परेशानियां कई किस्म की है. कभी जिस्मानी बीमारी है, कभी बच्चे की कुछ तकलीफ है, कभी व्यापार की कुछ तकलीफ है, कभी और कुछ तकलीफ है. हम लेवे के चलो जिस्मानी बीमारी. आज मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया है मुझे बताओ. इसमें भी कनाडा, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो एक एक इलाज जो निकलते जाते हैं, ठीक है. 1978 में मेमानी के अंदर चित्रावड़ का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ आया, सलीम उसका नाम, लेकिन पांव से लंगड़ा, ऐसा चले, ऐसा हाथ रख के बेचारा चले. हाजरी इमाम के पास आया. हाजरी इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके माँ बाप को दुआ आशीष दी. ये लड़का ऐसा दया की नजर से हाजरी इमाम के सामने देखता था. अभी मुझे बताओ दीनदारों, हाजिर इमाम मजहर अल्लाह है ना, अली का नूर है ना, अली मोहम्मद का नूर है ना, ठीक है. मैं आपको बताऊं कि देखो, पंच तन पाक, पंच तन पाक, 5 पाक शरीर, 5 मुकद्दस बॉडी, हजरत नबी मोहम्मद, हजरत अली, माता फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन, ठीक है. ये 5 तन के अंदर हमारे शिया कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह ने अपना इलाही नूर तकसीम किया. ध्यान देना, अल्लाह ने अपना इलाही नूर, इलाही पावर ये 5 जिस्म के अंदर तकसीम किया. 5 जिस्म में से एक जिस्म की वफात हुई, हजरत नबी मोहम्मद की, तो वो नूर 4 जिस्म के अंदर तकसीम हो गया. 4 में से बाद में हजरत अली की वफात हुई, तो वो नूर 3 जिस्म के अंदर तकसीम हुआ, हजरत हसन, हजरत हुसैन और माता फातिमा. जब माता फातिमा की वफात हुई, तो वो नूर 2 जिस्म के अंदर बट गया, हजरत हसन और हजरत हुसैन. जब हजरत हसन की वफात हुई, तो वो नूर, टोटल नूर 1 तन में आया हजरत इमाम हुसैन के अंदर. और शायद इसीलिए हम कहते हैं करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, कि वो नूरे पंजतन जो है वो उतरता 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 आज खुदावन नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम के जिस्म के अंदर है. और हाजिर इमाम ने उस नूर को अपनी गैर हाजिरी में इस जमात खाने के अंदर भी रखा है, वो मैं आपको बाद में कहता हूं. लेकिन हाजिर इमाम ने फरमाया ने कि घणी चीजों जेना बारामा मारी जमात जानती नहीं, घणी इंपॉर्टेंट चीजों, अहम बातें जिसके बारे में मेरी जमात नहीं जानती है. मैंने कहा मौला सब देखता है, जाहिरी तौर पे भी उसके पास सब रिपोर्ट है. वो लड़का आया, मौला ने दुआ आशीष दिया, वो चला बेचारा. और हाजिर इमाम दूसरी मेहमानी लेते नहीं है, चलता है. वो दूर तक देखा,
फिर हाजिर इमाम ने वारस साहब को कहा, अपने इत्मादी डिपार्टमेंट के हेड, उसको वापस बुला। वो आया तो हाजिर इमाम ने इसके पेरेंट्स को पूछा वारस साहब के थ्रू के ये लोग ने इसका इलाज कराया है, कुछ डॉक्टर को दिखाया है? तो बोले हाँ दिखाया है, लेकिन तो हाजिर इमाम फरमाते हैं नेशनल के प्रेसिडेंट को और इत्मादी डिपार्टमेंट के हेड को, वजीर साहब को, कि देखो इसको बंबई लेके जाओ, इसको अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को बताओ, मुझे लगता है ये लड़का चल सकता है, इसका पैर अच्छा हो सकता है, मुझे लगता है। और हाजिर इमाम ने फरमाया कि इसका सब खर्चा मेरे तरफ से मैं दूंगा। ठीक है, बंबई में लड़के को बुलाने में आया, कांडीमोला करीमाबाद के अंदर एक रूम के अंदर रखने में आया और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करने में आई, डॉक्टरों को दिखाने में आया। डॉक्टर देखे, कहते है तो मुश्किल लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 ऑपरेशन होंगे इसके। दूसरा ऑपरेशन हुआ और जब दूसरा ऑपरेशन हुआ तो बच्चे का पांव अच्छा होने लगा। ठीक है, और जब कुछ टाइम के बाद तीसरे ऑपरेशन के लिए एडवाइस लेने गए तो हमें लगता है तीसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये बहुत लकी लड़का है कि इसका पांव तीसरे ऑपरेशन के बगैर अच्छा हो गया है। अभी हम कुछ मसाज वगैरह का देते हैं तो वो उसका पांव आस्ते आस्ते अच्छा हो गया। ठीक है, और वो लड़का चलने लगा। पहले लकड़ी से चलता था, फिर लकड़ी भी छूट गई उसकी, और आज वो लड़का शादी हो गई है, वो बाल बच्चे वाला हो गया है, व्यापार करता है, आराम से चलता है। मकसद कहने का दीनदारो। हाजिर इमाम हाथ फिरा सकते थे ना, अच्छा हो जा, ठीक है, लेकिन ऐसा किया नहीं। हाजिर इमाम हमको अंधश्रद्धालु बनाना नहीं चाहते, हाजिर इमाम हमको फैनेटिक बनाना नहीं चाहते हैं। हाजिर इमाम चाहते हैं कि तुम लड़ो तकलीफों के सामने, मुश्किल के सामने लड़ो, क्योंकि घણા દુઃખો અને તકલીફો કુદરતી હોય છે। ઘણા દુઃખો અને તકલીફો એ કુદરતી હોય છે, नेचुरल હોય છે, तो उसके लिए कोशिश करो हटाने की। लेकिन जब दूसरे तीसरे रास्ते अख्तियार करते हैं तब सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह को बहुत दुख होने लगा, और तब ये बैयत के फरमान सुल्तान मोहम्मद शाह ने किए कि अपने ईमान को संभालो, अपनी श्रद्धा को संभालो, और सब कुछ तुमको हमने यहाँ पर दिया है। ये मुखी की जो गादी है ना, हाजिर इमाम ने फरमाया कि मेरी गैर हाजिरी में मैं अथॉरिटी यहाँ पर देके जाता हूँ। ठीक है, या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम तो जमातनी सर्वे बला आफत मुश्किल ने दूर कर जे। ठीक है, रोज मांगते हैं ना, और 2 सेंटेंस क्या सुनते हैं, या हाजिर इमाम तो जमात तो ईमान सलामत राखजे, और तीसरा क्या सुनते हैं, या हाजिर इमाम जमात ने फरमा बरदार मोमन बनावजे। ठीक है, तो कभी पूछो तो से है फरमा बरदार, है ईमान सलामत, होवे तो मुबारकबाद। लेकिन रोज मांगते हैं कि बला आफत बीमारी तू दूर करजे, और एक रूहानी बच्चा ऐसा कहे कि नहीं नहीं नहीं, मारू ईमान एकदम बराबर छे, हाँ, જરાય ખોટ નથી, બિલકુલ હાજર ઇમામને માનું છું, બધાને રોજ જમાત ખાને, પણ જરા એક વસ્તુ છે ને એ કદાચ હાજરી ઇમામમાં ઓછી લાગે છે, ऐसा कहते नहीं है। કઈ ઓલી બલા બલા નીકળવાની છે ને એ કદાચ અહીંયા નથી, બલા નીકળવાની અહીંયા નથી, અહીંયા તાકાત નથી। બલા હોય તો ને, બલા હોય તો ને। सुनो, मुखी तेजे सर्वे बलाओं ने निकाले, अने लख 84 ना फेरा टाड़े। मुखी तेजे
अरे किसके घर पर जावे, उसके जीव का भला कर आवे. मुखी मीन्स मुखी एंड कामड़िया बोथ मेरे रिप्रेजेंटेटिव. मेरी गैर हाजिरी में सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, जमात जो यहाँ पाठ के पास सिजदा करती है, दुआ कराती है, सब रस्म करती है, तो लकड़े का पाठ देख के नहीं करती है, लेकिन हमारा नूर यहाँ हाजिर नाजर देख के और ये सब रस्म करती है. और ऐसी दबदबे वाली नूर की मर्तबे वाली जगह पे हमने मुखी कामड़िया को बिठाया. ऐसी मर्तबे वाली. माँ बाप ने फरमाया, मुखी तेजे मुआ मानवीने जीवता करे, अने जिनका दिल होया तेना काज सारे. मुआ मानवीने जीवता करे. कल आना नहीं भाई के हालो भाई मरी गया છે બાપા જીવતા કરો. મુઆ માનવી क्यों मानवी? अंदर जे તમારો મરેલો આત્મા છે ને એ માનવી. हमारी कमजोर जख्मी मरी हुई अरवाहों के अंदर वो जान डालता है कि देखो ये दर छोड़ के किधर मत जाओ, मौला तुमको सब यहाँ देगा, और कदाच नहीं दूर हुआ तो तुम्हारे अंदर दुख उठाने की ताकत आएगी. हाजिर इमाम को लेटर लिखा, शाह करीम को. हाजिर इमाम शाह करीम को लेटर लिखा. लेटर में क्या लिखा? या हाजिर इमाम, मुझे कुछ बला परेशान करती है, मुझे कुछ बला, कुछ स्पिरिट, कुछ रूहें मुझे परेशान करती है. हाजिर इमाम ने जवाब दिया. भाई को संतोष नहीं हुआ, वापस लिखा. वापस दूसरा जवाब आया. ठीक है, सुनो. माय डियर स्पिरिचुअल चाइल्ड, I have received your letter of 8 February concerning the spirits which are bothering you. I advise you every time you feel they are worrying you to say tasbih. હું તને સલાહ આપું છું કે તને એમ લાગતું હોય કે તને આ સ્પિરિટ રૂહાની હેરાન કરે છે, તો અમે તમને ફરમાવીએ છીએ કે સે તસ્બીહ. फिर फरमाते हैं, I also advise you to do regular physical exercise every day so that you get reasonable tired by the time of night. सबसे बड़े में बड़ी कमजोरी हम इंडो पाक के इस्माइली की जो आखिरी दुनिया में फैले हुए हैं, कसरत की कमी. खाना पीना सब है, तरी वाला खाना है, तलन खाना है, ठीक है, तीखा खाना है, चिकन और गोश्त की बोटियां खाना है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी. और एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां पैदा होती हैं. ठीक है, तो मौला कहते हैं कि भाई थोड़ी एक्सरसाइज कर तो तू थक जावे रात तक. यू मस्ट रिमेंबर that there are no spirits which will bother you. कोई ऐसा आत्मा नहीं है जो तेरे को हैरान करे. And I send you my best blessings, your affectionately आगा खान. वापस लेटर लिखा तो वापस जवाब आया. 3 August 1960. My dear spiritual child, I have received your letter of 22nd April. You should know that there are no spirits which can harass you if you have faith. आ गया जवाब. अगर तने श्रद्धा छे, ईमान छे, तो कोई एवो आत्मा नहीं जे तने हैरान करे. अगर तने श्रद्धा छे. कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. और यही बात सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह आखी जिंदगी फरमाते रहे इंडो पाक के इस्माइलियों. फिर मौला पर लिखते हैं, यू शुड से तस्बीह. सताड़ा चालू होता है ना, नियत करो, अपने दिलों में नियत करो.
جو بھی مشکلی ہے, جو بھی پرابلم ہے, جو بھی تکالیفیں ہیں, جیسی بھی تکالیفیں ہیں, روز آؤ 7 دن. اور یہ تو گفٹ دی ہے ویسٹرن کنٹری میں, انڈیا پاکستان میں نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے سے تم کو مولا نے ستاڑا دیا ہے. سمجھو اس کے لیے تمہاری پریشانیاں دور کرنے کے لیے دیا ہے, تمہاری مشکلیں دور کرنے کے لیے دیا ہے, ہماری روحوں میں طاقت آئے اس کے لیے دیا ہے, ہمارے ایمان میں پاور آئے اس کے لیے دیا ہے. نیت کرو مولا کے ساتھ کہ مولا یہ 7 دن میں تیری گریازاری اور تسبیح نکالوں گا, اور انڈیویجل بھی تسبیح نکالو. تو مولا کہتے ہیں یو شوڈ سے تسبیح, آئی سینڈ یو مائی بیسٹ پیٹرنل میٹرنل بلیسنگس فار سروس, یور افیکشنیٹلی آغا خان, خانوادان, خانام سلوات پڑھ اللہم صلی اللہ محمدین و آل محمد. کتنے خلاصے کیے ہیں مجھے بتاؤ, کتنے خلاصے کیے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی مولانا سرکار سلطان محمد شاہ کو اور مولانا حاضر امام کو ہمارے لیے ایسا فرمانا پڑا. ایسے ایسے فرمان جب پڑھتے ہیں اور جماعتوں کے اندر جب پھرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ یا مولا کہاں ملے گا تیرا جیسا, کہ جس نے گادی کے اوپر آنے کے ساتھ یہ فرما دیا کہ مارو جیون مارا دادانی જેમ તમને અર્પણ કરી દઉં છું. તમારા દુનિયાવી સુખ અને આબાદી એ મારી જિંદગીનો અહેમ મકસદ રહેશે. तुम्हारी दुनियावी सुख और आबादी मेरी इमामत का, मेरी जिंदगी का अहम मकसद रहेगा. और आज 67 ईयर पूरे हुए हैं, 68वां बरस बैठा है और घूमते हैं, पांव टेक के बैठते नहीं हैं. क्यों घूमते हैं? खुद के फायदे के लिए. अरे सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया आखिरी टाइम के ऊपर 72 વર્ષમાં અમે જેટલી મુસાફરી કરી છે, 72 વર્ષની ઇમામતમાં એક પણ મુસાફરી મારા મનોરંજન માટે નથી કરી, પણ હર મુસાફરીની પાછળ મારો હેતુ એક જ હતો કે મારા રૂહાની બચ્ચા સુખી અને આબાદ રહે. ये हेतु, आज हाजरी इमाम का भी ये हेतु है. वो इमाम हमको जब ये फरमावे और फिर हम जमात के अंदर देखे तो ऐसा होवे या मौला. अरे सुल्तान मोहम्मद शाह ने वो प्लेग का आपने सुना होगा कि प्लेग की इंजेक्शन निकली, कोई इंजेक्शन लेता नहीं था, सब डरते थे. ठीक है, तो बम्बई के अंदर 4 नल के पास सुल्तान मोहम्मद शाह ने मीटिंग बुलाई और सब जमात वालों को बुलाया, दूसरी कम्युनिटी को बुलाया. सुल्तान मोहम्मद शाह इस्माइलियों को कहते हैं डरो मत, તમને એક સુઈ જેટલું પણ દુઃખ થાય ને એ પણ હું નથી ઈચ્છતો, પણ આ ઇન્જેક્શન તમારા ફાયદા માટે છે અને તમને કાંઈ નહીં થાય. और खुद ने डॉक्टर को कहा कि पहले मेरे को दे. मौला कहते जो હું લગાવું છું, મને કાંઈ થાય તો પછી નહીં લગાવજો, देखो तो सही सेक्रीफाइस. और इमाम ने ऐसा बाँ ऊंची की और उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो जमात ने हाँ मौला ने कांઈ નથી થયું, હવે નખાવો इंजेक्शन. તમને એક સુઈ જેટલું પણ દુઃખ ન થાય, ऐसा हाजिर इमाम. और जरा दुनिया की गर्मी आई, थोड़ी तकलीफ आई तो चले કે મુખી સાહેબ એ થાળા બધું બરાબર છે, ખાલી આટલી ચીજ છે ને અહીંયા ઓછી લાગે. અરે અરે રે दीनदार हाजिर सुल्तान मुशाह, हम तुम्हारे रहनुमा हैं, तुमने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया है, तुम मेरी पनाह में हो तो तुम्हारा हाथ दूसरों को मत दो. कितना दुख होता होगा वो जब बोलता होगा. मैं तो हमेशा इस तरीके से फरमान पढ़ता हूँ कि जैसे इमाम खड़ा है, जमात बैठी है और उसके मुंह में से ये दुख निकल रहा है कि તમે તમારો હાથ બીજાને નહીં આપો. तुम ऐसा नहीं समझना कि फलाना भगत फलाना आदमी तुम्हें पार उतारेगा, हमारे सवा ये भगत या वो भगत तुम्हें पार नहीं उतारेगा. देखो खुदा के तरफ से मेरे को फर्ज है तुमको बोलने की. देखो हम तो दरवेश हैं, मेरे को मानो तो भी भले और न मानो तो भी भले, लेकिन इमाम की हैसियत से हमें कहने की फर्ज है. तो तुमको फरमाते हैं कि तुम्हारे मजहब ईमान को संभालो,
तुम्हें सीधा रास्ता दिया है उसे संभालो। तुम यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, दूसरे के पास रास्ता लेने जाते हैं, ये काम अच्छा नहीं है। देखो तुम चलो या न चलो ये तुम्हारी खुशी है, लेकिन इमाम की हैसियत से खुदा के तरफ से मेरे को फर्ज है, तो हम तुमको फरमाते हैं तुम जो मांगो वो हम तुमको देने को तैयार है। तुम दूसरों के पीछे मत दौड़ो। खानावदान खानावदान सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कैसी आजीजी करते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं? नहीं। हज़रत इमाम ने फरमाए कि कीप स्ट्रॉन्ग ऑन द पाथ ऑफ सिरातल मुस्तकीम, डोंट वंडर, डामाडोल नहीं था। Stay clear in your mind to stay on the path. That is the path which is good for you. It is only path that is good for you. क्यों कहा don't wonder? कुछ देखा होगा ना दीनदार, ठीक है। एक बात मेरी रिकॉर्डिंग कैसेट में आई है कि नहीं मुझे पता नहीं है, एक दो बात बताओ और फिर आस्ते 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 अपने सब्जेक्ट को मैं पूरा करूं। 85 के अंदर मैं कराची गया फरमान वर्कशॉप के अंदर, तो खारा दर में वायस करने गया। उस टाइम पे वो दरखाना था। वायस के बाद मैंने मुखी साहब से कहा कि मुझे वारसानी माँ से मिलना है। वारसानी माँ कराची वाले जानते होंगे, वारसानी गुल शक्कर बाई, वजीर रहीम बसरिया की वाइफ, सेकंड वाइफ। मुखी साहब ने कहा कि देखो पार्ट पे बैठे हैं। जमात खाना छूट गया, मैं गया उनके पास बैठा, बहुत सारी बातें जानी। मैंने कुछ सवालात किए, कुछ क्वेश्चन किए। तो एक क्वेश्चन मेरा ऐसा था जो आपको समझ में पड़ जाएगा। तो मुझे वारसानी कहती है कि मिशनरी, वजीर रहीम मेरा खाविन सुल्तान मोहम्मद शाह को ये सवाल करा था। वारसानी कहते हैं मेरा खाविन वजीर रहीम सुल्तान मोहम्मद शाह को ये सवाल करा था जब मेहमानी के अंदर जा रहे हैं। अभी मेहमानी शुरू नहीं की है। क्या सवाल करा? खुदाविन एक बात पूछो। बोलो वजीर क्या है? खुदाविन तेरे कई रूहानी बच्चे जो कोई मुश्किल में आ जाते हैं, कोई तकलीफ के अंदर आ जाते हैं, तो वो तेरा घर छोड़ के बाहर जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी फकीर के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमको फायदा हुआ। तो सुल्तान मूसा हंस के कहते हैं ऐसा? तुमको ऐसा कहते हैं? मेरे रूहानी बच्चे कहते हैं। हाँ खुदाविन। हम जब उसको समझाते हैं ना खुदाविन, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा ईमान तो बराबर है, हमारा ईमान तो बराबर है, लेकिन खाली एक डॉक्टरी इलाज तरीके हम गए हैं। मौला कहते हैं डॉक्टर के पास गए? नहीं खुदा, डॉक्टर के पास नहीं, वो छूछा करने वाले के पास। तो सुल्तान मूसा वापस हंसे। मौला ने फरमाया देखो वजीर, इनको समझाओ कि तुमको दिखता है कि फायदा हुआ है, तुमको दिखता है कि फायदा हुआ है, लेकिन वजीर हम दूसरा जुमला कहता है, सुनो, फायदा होगा और ईमान जाएगा। क्या कहा? फायदा होगा और ईमान जाएगा। और मैंने अपने 40 बरस की मिशन लाइफ में देखा है कि जो एक मर्तबा वो कुंडारे के अंदर, वो सर्कल के अंदर पांव रख दिया, वो अगर धनी की कोई इच्छा हुए, ने लोग की कोई करनी हुए, माँ बाप की, बाप दादे की, तो वापस मौलाना हाजरी इमाम के घर में आवे। नहीं तो उसका चक्कर जो चालू हो गया। ए जी सतनी वातमा समझे नहीं, अने भूत भक्ति सु राखे अति प्यार, ते माहे जे जीव पर तमे कृपा करो, ए जीव आवशे तारे द्वार। એ જી કલયુગમાં એવા જીવ પેદા થશે
જે પોતે તો ડૂબશે પણ બીજાને ડૂબાડશે અપાર, તે તો અર્થના અનર્થ કરીને ઠેરાવશે ને તારા ફરમાન ઉઠાવશે તેણી જેવા એવા जीव पैदा थे। उससे अपने आप को बचाओ, उससे अपने आप को बचाओ। मौला ने कहा कि फायदा होगा, ईमान जाएगा। और मैंने अर्ज की कि अगर उसके नसीब में होवे तो ऐसी एक बात तुमको बताऊं, कलाम इमाम मुबीन पार्ट 1 जो आपके पास होवे तो उसमें 1903 का एक फरमान देखना, ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? कच्छ का फरमान है कि हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह પાસે એક ઇશનાશ્રી આપણા સતપંથ ધર્મમાં પાછા આવવા માટે અરજ કરી અને કીધું કે ખુદાવિન मेरे को वापस आना है। तब सुल्तान मोहम्मद शाह ने नीचे प्रमाणे का फरमान किया। अब वो फरमान हम जानते हैं, जो कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़े तुम्हारे सामने, ठीक है। लेकिन वो आदमी की मैं तुमको बात करूं, उसका नाम था बंदाली भाई, उसका नाम था बंदाली भाई। और माँ चुस्त भगत, चुस्त यानी इबादती भाई, बाप भी इबादती। लेकिन ये बंदाली भाई बंदा कुछ दोस्तों की फ्रेंडशिप में आके और उसका ब्रेन वॉश हो गया। और जैसे मैंने गिनान का पाठ दिया ना कि जे पोते डूब से ने बीजाने डुबाड़ से, उसको आस्ते 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 इश्नाश्री धर्म के तरफ लेके गए, ठीक है। और एक दिन उसने माँ बाप को कहा कि हूँ हवे इस्माइली धर्म माथी निकली जाऊं છું, ओलो धर्म साचो छे, और चले गया। माँ को तो इतना आघात लगा कि उस दिन से उसकी माँ ने खाना पीना कम कर दिया और रोज रात को तस्बीह निकाले खड़ी रह के और आजिज़ी करे कि मौला ये हमारा पेट से पैदा हुआ जीव ये ऐसा कैसा चले गया, या मौला रोज गिरियाजारी करे। सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह की पधरामणी हुई। अब ये देखो बंदाली भाई चले तो गया, लेकिन मौलवी जैसा बन गया, मुल्ला जैसा बन गया। वो कुरान पढ़े, नमाज पढ़ावे, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह आए और 10 तबोशी ने बैयत का कामकाज था, ये तारीख को 25/11/1903 को। और वो जो है वो निकला यहाँ से, 3-4-5 दिन का प्रोग्राम था। और देखता है कि पेंडोल के अंदर लाइन लगेली बैठी है और मौला के हाथ चूमते हैं और मौला छांटा डालते हैं, सब बैयत करते हैं। तो बंदाली भाई दिल में सोचता है कि आया है, पैसे सबके पास जमा करेंगे और लेकर चले जाएंगे, ऐसा उसके दिल के अंदर, ठीक है। वापस आया घर पे और कुरान हाथ में लिया, कुरान हाथ में लेके और दुआ मांगता है कि या खुदाया अगर मैंने कुछ गलती की है, इसको छोड़ के, इस्माइली धर्म को छोड़ के, हाजिर इमाम को छोड़ के, तो मेरे को कुरान में से जवाब दे। कुरान खोला बिस्मिल्लाह करके, तो हम दुआ में चौथे पाठ में पढ़ते हैं ने, वो आयत उसके सामने है, इन्नल लज़ीना युबायूनक इन्नमा युबायूनल्लाह, કે રસૂલ જે તારા હાથ પર બૈયત કરે છે, ખુદાના હાથ પર બૈયત કરે છે, અને જે બૈયતનો કોલ તોડી નાખે છે, હોય ને। वापस बंद करा, वापस खोला, सेम आयत आई। तीसरी मर्तबा बंद करा, अल्लाह से कहता है या अल्लाह तू मेरे को रास्ता बताने वाला है, तू बता। खोला, वापस ये आयत आई। फिर बंद करके निकला, देखता है तो हजी चालू है बैयत का काम नहीं है। वो वहां खड़ा रहा, खड़ा रह के और वॉलंटियर को कहता है मेरे को अंदर जाने दो ना। बोले क्यों? बोले मेरे को इमाम से मिलना है। बोले चल भाग भाग। आज तो शुक्र है कि हम सब मिलके रहते हैं, इश्नाश्री और इस्माइली आज फ्रेंडशिप में है, ठीक है। तरीका अपना अपना जिसका है वो अपना अपना तरीका, हम किसको नहीं कहते कि उसका तरीका गलत है, कि ठीक है। बोले चल चल। तो रिक्वेस्ट वापस करा कि प्लीज मेरे को जाने दो। बोले टोटट क्यों जाना है? बोले मेरे को वापस आना है। तू वापस आएगा? तू इतना डीप उतर गया है? नहीं माने।
تو کیا کرا پتہ ہے؟ جوڑے پڑے تھے نا باہر، وہ جوڑے ہٹائے اور جھک کے اور ایسا ہاتھ ایسا لگا کے، اور مٹی تھی نا جماعت کی جوتے کی، وہ سر پہ لگایا. اے حضرت امام سلطان محمد شاہ، مہربانی کر کے تیری گج جماعت کی دھوڑ کے پرتاپ پہ میرے کو تو واپس قبول کر، ایسا ریکویسٹ کیا. ٹھیک ہے، تو والنٹیئر کو لگا کہ نہیں نہیں کچھ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. جا کے مولا کو میسج بھیجا، مولا نے کہا اس کو لاؤ اندر. وہ آیا، بندالی بھائی آیا. اس کے لیے فرمان آیا کہ ایک اشناسری نے پاچو اسماعیلی تو مولا نے فرمایا کیوں؟ تو رو پڑا، مجھے معاف کرنا. ٹھیک ہے، سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں دیکھو تم کو واپس حاضر امام کی شناخت ملی تیری ماں کی گریازاری اور تسبیح کی وجہ سے. تو جب سے اشناسری بن گیا ہے تیری ماں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائی ہے اور اس کا آتما اس کا دل روتے رہتا ہے، اور تیرے پیٹ میں دسون کا پیسہ گیا ہے، اس کے لیے تیری بدھی واپس آئی. مولا نے فرمایا دسون کا یعنی حق دسون نکالا ہوا، تیرے پیٹ میں خوراک گیا ہے. والنٹیئر کو کہا اس کی ماں کو بلاؤ. اس کی ماں آئی، اور ماں آئی سلطان محمد شاہ کے پاس. مولا کہتے ہیں دیکھو تیرا بیٹا واپس آ گیا، تیری تسبیح خدا کے دربار میں قبول ہوئی. چھانٹا دیا اس کو. ٹھیک ہے، چھانٹا دیا، معافی مانگ لیا. ابھی دیکھو کسوٹی شروع ہوتی ہے، امتحان شروع ہوتا ہے. کہا نا کہ ہی پنتھ کھنڈا کیری دھار، کہ یہ پنتھ کھنڈا کی دھار ہے. ایک بچہ پیدا ہوا مر گیا، دوسرا بچہ پیدا ہوا مر گیا، تیسرا بچہ پیدا ہوا مر گیا، چوتھا بچہ پیدا ہوا مر گیا. اور وہ جو تھے وہ آئے، دیکھا تو چھوڑ دیا نا واپس ہم لوگ کو. دیکھ پنشمنٹ تیرے کو شروع ہوئی. چھٹا بچہ پیٹ میں رہا، چھٹا بچہ. لیکن وہ بندہ ڈگا نہیں، کسی کے ورگلانے سے، کسی کے فریب میں لانے سے نہیں ڈگا. وہ کہا جو بھی ہوئے اب حاضر امام کو نہیں چھوڑوں گا میں. چھٹا بچہ پیٹ میں تھا اس کی وائف کے. سلطان محمد شاہ کے فوٹے کے پاس گھر میں نے تیرے کو واپس قبول کیا، تیرے کو پہچان لیا، واپس بیعت کی، تو تو میرا امتحان لیتا ہے نا. لے میں دیکھتا ہوں کتنا امتحان لیتا ہے. یہ چھٹے بچے کو بھی مار ڈال، میں تیرے کو نہیں چھوڑوں گا، مار ڈال. اور رویا چھوڑ. اور چھٹا بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا، اس کا نام جعفر علی رکھنے میں آیا. وہ جعفر علی کچھ کاؤنسل کا سیکرٹری بنا، مندرا کاؤنسل کا. اور وہ جعفر علی کا لڑکا مشنری عبد رسول کھوجا، جو شکاگو کے اندر جس کا انتقال ہو گیا، جس کی فیملی ابھی یہاں ہے، اس کی وائف یہاں ہے، شاید وائس کے اندر بھی بیٹھی ہوگی. ٹھیک ہے، مقصد کہنے کا تسبیح، گریازاری، ذکر، فکر، دین دار، کہ تمہارے ایمان کو سنبھالو. مولا نے فرمایا تمہارے ایمان کو مضبوط کرو. وہ زخم پڑ گیا ہوئے وہ زخم کو اچھا کر دو جلدی، نہیں تو زخم بڑھتا جائے گا. اس کے لیے سرکار سلطان محمد شاہ نے فرمایا مارا پر کھپے એટલું ایمان હશે પણ અગર જમાત ખાને આવવાની અને દુઆ પડવાની તમારી આદત નહીં હશે તો આસ્તે 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 તમારું ઈમાન ચાલ્યું જશે, એમાં કાંઈ શક નથી. दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जिंदा, तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. और अगर इस घर को बराबर पकड़ के रखोगे, जिक्र फिक्र को पकड़ के रखोगे, कितनी भी मुश्किलियां आएगी, हाजिर इमाम ने कहा कि पड़ी जशो पण ईमान सलामत રહેશે. તમે 100 વખત પડી જશો પણ તમારું ईमान सलामत રહેશે. છેલ્લી एक बात और बताओ और फिर वॉइस को मैं बंद करूं. ये भी शायद मुझे लगता है तो मैं शॉर्ट के अंदर कहता हूं. राजबाई उसका नाम था करीम शाह के जमाने के अंदर. राजबाई 69 के अंदर 62 में हाजिर इमाम भावनगर आए. उसको मेहमानी के अंदर हाथ पकड़ के लेके आने में आया. मिशनरी मसानी के भाई मेहंदी भाई उसको हाथ पकड़ के लेके आए. हाथ में छोटी अंगूठी की डब्बी है, पेपरमिंट की प्लेट मेहंदी भाई पकड़े हैं,
हाजरी इमाम दुआ शीश दिए, खाना वदान दिए, तो कहा कि खुदा ने इसको अंगूठी पिनानी है। तो बोले भले। डब्बी खोली, अंगूठी निकाली, शाह करीम को यहाँ तक पिनाए, अंदर उतरी नहीं। हाजरी इमाम उतार के और उसको वापस दे दी। लेकिन जब वो अंगूठी यहाँ तक गई ने, तो हाजरी इमाम का हाथ यहाँ कांडे से पकड़ लिया आस्ते से, और ऐसा ऐसा करती है। बाजू में लीडर खड़े थे, वो जरा ऐसा बोले कि भाई उसको आंख से कम दिखता था, मोतिया आ गया था। हाजरी इमाम ने कहा करने दो, उंगलियां दबाती ऐसा, बोला कि ठीक है। और फिर हाजरी इमाम अंगूठी उतार के दे दिए, दुआ शीश दिए, और हाजरी इमाम फरमाते हैं तुम्हारा खाविन, तुम्हारा धनी और तुम्हारे दोनों लड़के की रूहानियां हमारे हुजूर में हमारे पास है। और हाजरी इमाम फरमाते हैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा रूह हमारे पास आएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तो हाजरी इमाम मेहंदी भाई को कहते इसको समझा ट्रांसलेशन करके, तो उसको ट्रांसलेशन करके समझाते कि રાજમાં हाजरी इमाम आप प्रमाणे फरमावी दिया छे, आमीन। खान रोते जाती है। ठीक है, हाजरी इमाम चले गए तो उसको पूछते हैं कि माँ आ हाथ केम दबावता था? तो वो हिंदू में से आए थे ना, गुप्ती इस्माइली भावनगर की। तो बोले ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપનું વર્ણન છે, એક્સપ્લેનેશન છે, તો હું ચેક કરતી હતી કૃષ્ણને કે એના હાથ કેવા છે, એની આંગળીઓ કેટલી સોફ્ટ છે, કેટલી કોમળ છે। તો કા કેવું લાગ્યું? તો કે ગીતામાં વાંચ્યું તો ને એના કરતા તો ઘણું વધારે છે। 69 के अंदर वो खुदा की रहमत पे पहुंची। जब उसका आखिरी टाइम आया तो जितने भी थे वहां पर कहती है हाजिर इमाम लेवा माटे आवी गया छे मने, हाजिर इमाम मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। और देखो ट्रेजेडी देखो कि जैसे वो इस्माइली धर्म के अंदर आए, सुल्तान मुशाह हाजिर इमाम की बैयत की, सुल्तान मुशाह की बैयत की, फिर हाजिर इमाम की भी बैयत की, तो उसके पे प्रॉब्लम शुरू हो गए। ठीक है, नेचुरल है, कुदरती है। घણા દુઃખો અને તકલીફો કુદરતી હોય છે। उसका हस्बैंड મર ગયા તો સગે વાલે આए, જોયો હજી વાંચજો, હજી જુઓ તમારા ઉપર શું થાય। थोड़ा टाइम हुआ तो एक बच्चा है, लड़का, बड़ा लड़का, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। कुछ टाइम हुआ तो तीसरा लड़का, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और जब भी कोई आवे कि हजी भी समझी जाओ, तो क्या कहती है पता है? अब बधु चाली जाए, हजी एक छोकरो बाकी छे, ए भी भले मरी जाए, पण हूँ हवे साहेब ने नहीं मूकू, हूँ हाजिर इमाम ने हवे नहीं मूकू, कारण के मैं एने परखीने ओळखीने एने कबूल कर्या छे, परखीने ओळखीने कबूल कर्या छे। मौत, जीवन, मरण खुदा के हाथ में है। मौत और जीवन मरण खुदा के हाथ में है, इतना याद रखना। कई लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी रोजी कोई बांध दिया है। हाँ, अरे कौन बांधेगा? सूरे बकर में अल्लाह फरमाता है कौन है अल्लाह के सिवाय कोई अल्लाह कि जो तुम्हारी रोजी को कुशादा कर देवे, पौड़ी कर देवे, और कौन है अल्लाह के सिवाय और कोई जो तुम्हारी रोजी को तंग कर देवे। कोई रोजी बांध नहीं सकता है, कोई नहीं। और इसमें इस्माइली की तो कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैं ही हूँ जो रोजी को कुशादा करता हूँ, बेशुमार रोजी देता हूँ, और मैं ही हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी रोजी को तंग कर दूं, बाकी किसी की ताकत नहीं। ये आज की वॉइस का मैसेज है कि मौला के साथ जो करार किए हैं, बैयत किए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें। मौला सुखी, सलामत और आबाद रखे। सते हालो मो मना सते चालो, सते हालो मो मना सते चालो, सत पंथ सुराखो चितने ध्यान जी, यारा सत पंथ सु राखो चितने ध्यान, पंजतन पाक केरे पंथे चालो,
सत पंथ सुराखो ईमान जी यारा सत पंथ सु राखो ईमान पीर हसन शाह गिनान सुनाया अरे जेने ढूंढिया तेने शाह ने पाया जी यारा जेने ढूंढिया तेने शाह ने पाया। मौला सुखी सलामत आबाद रखे, मौला फरमाबरदार मोमन बनावे, मौला जानिया जानिया गुनाह माफ करे, मौलाना हाजिर इमाम खुद के घर की शनाख्त देवे, मौलाना हाजिर इमाम हकीकी समझ देवे, हकीकी आँख देवे, खुद के घर की मोहब्बत और प्यार देवे। मौलाना हाजिर इमाम हमारी आल औलाद सब का ईमान सलामत रखे। मौलाना हाजिर इमाम जल्द आके खुद के ज़ाहिरी और इबादत के अंदर बातिनी दीदार नसीब करे। पूरी जमात के हैज़ंदा सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा।